السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں دنیا کے دولت مند ترین فرد بل گیٹس کی خوبصورت باتوں سے. Oh my God! جنید پلیز یہ انٹروڈکشن مجھے اچھا نہیں لگتا. امیر ترین آدمی، خدا کے لیے یہ نہ کہا. ویسے بائی دی وے اب آپ دنیا کے امیر ترین آدمی رہے بھی نہیں، تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں. او یار میں رہنا بھی نہیں چاہتا، تسی ہو جاؤ امیر ترین آدمی، تو آدھے رہتے نے. ہمارا برین میں یہ بات نہیں ہوتا ہے کیڑا امیر ہے کیڑا ماڑا ہے کیڑا چنگا ہے. ہم تو اپنا کام کرتا ہے. اچھا، آپ یہ کہتے بھی جاتے ہیں کہ آپ کے لیے دولت بالکل اہمیت کے حامل نہیں ہے اور دولت کماتے بھی چلے جا رہے ہیں. اب تازہ ترین خبر یہ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ دنیا میں دولت کے حوالے سے تیسرے نمبر پہ چلے گئے ہیں پہلے سے ہٹتے ہوئے، لیکن دوسری طرف آپ دنیا کے سب سے بڑے ذمہ دار بن گئے ہیں. آپ کے پاس 1 لاکھ مربع زمین ہے. 1 لاکھ مربع. تسی یہ دیکھو، آج ہی میری دیکھو، 1 لاکھ مربع ہونے باوجود میں ٹوٹی کوٹا نہیں پاندا. نہ میں کوری رکھی ہوئی ہے نہ میں پاک باندھنا ہوں. ایسے لوکاں دے کول 3 مرلے دا مکان ہوئے تے 5 مرلے دی پاک باندھ کے پھیر دینے. کامیاں دے اٹھے ظلم شروع کر دینے. ادھر تو ہر وڈا ذمہ دار سیاست میں گھس جاتا ہے صرف اس لیے کہ ان کے جو اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ورکرز، جن کو تم لوگ کاما کہتے ہو، ان ورکرز کو بیچاروں کو ظلم کر کے ان کے ووٹ حاصل کر کے ادھر لیڈر بن جاتے ہو. میں اس لیے نہیں زمین کاٹی کر رہا کہ میں لیڈر بننا ہے. میں تو خدمت کرنے کے لیے انسانوں کی. دیکھو ہر کام جو ہے اس میں اگر پوزیٹیو سوچے تو اچھا ہوتا ہے، اگر نیگیٹو سوچے تو وہ برا ہو جاتا ہے. اچھا، بل گیٹس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ماڈرن ایگریکلچر کریں گے. Oh yes, modern agriculture is a need of hour. اور مجھے کو اور تو یہ نہیں ہے کہ میں چودھری بن جاؤں، بیگم میری چودھرانی بن جاوے. یہ بڑی مسکین طبیعت دی ہے اس کی بھی. یہ تو اپنے نوکروں کے ساتھ بھی بڑے آرام نہ بول دیے. اچھا ہاں، بیچاری آپ لسی رکھ دیے بیٹھ کے. وہ تو ہیگی بھی ماری جائیے، 1-2 باری رسی دی ڈوری چ بھی پھنس گئی. اللہ دا شکر ہے میں کام تے نہیں سا گیا ہویا، میں کاٹ لئیے، ورنہ میرے آن تک ریڈا بھی مکھن بان گیا ہونا. ہم لوگ اس طرح کا طبیعت نہیں کرنا چاہتا. زمین زیادہ کر کے، دولت زیادہ کر کے ہم کوئی تکبر نہیں کرنا چاہتا. سر جی ایگریکلچر ماڈرن تسی کی کرو گے؟ یعنی تاڑیاں عورتاں سکلٹا پا کے مونجی لان گیا؟ دیکھو نا ذرا، یہ پاکستانی ذہنیت ہے. میں زیادہ مونجی لان دا سوچ رہے ہیں اور سکلٹان دا سوچ رہے ہیں. اچھا سر، کچھ دسو تے سے کس طرح ماڈرن ایگریکلچر کرو گے؟ کھڑی کپا دا کپڑا بنا دیو گے؟ کپڑا بناؤ یا نہ بناؤ لیکن کھڑی قدم دی روٹی ضرور بنانا. پاویں گندم کھڑی ہوئے پاویں کپا کھڑی ہوئے، تسی تے گھر آرام نہ بیٹھے ہوئے. توانوں تے گھر پہنچ جاندا ہے. یار بل گیٹس ایک نئے جذبے کے ساتھ ایگریکلچر میں آنا چاہتے ہیں، ان کو ویلکم کریں. آپ ان کو ڈسکریج کر رہے ہو. اور پلیز انڈرسٹینڈ کرو میری بات کو کہ مجھے کو اب اپنا لالچ نہیں ہے. میں اور کنا کو کھا لینا ہے. 2 روٹیاں تو واٹ بندے نے کی کھانا ہوندا ہے. تے پر جائی تو آڈی تے 2 بھی نہیں کھاندی. اڈی روٹی تے 4 دی پھاڑی رکھ کے تے بیچاری لگی ہوندی ہے. ایک باری میں کام تے چلے آواں تے اڈی روٹی پھاڑ کے کھانی شروع کی تھی. میں کام تو شامی واپس آیا تو دے چویں لیکن نہیں اڑی رہندی سی. صرف سادہ بل نہ کہ پاکستانی ہو دے کولو بڑا ڈر دینے. انہاں بیچارے اندر ہر دوجے مہینے بل وڈیا ہوندا ہے. میں آستہ نہیں کھا رہی تھی. جب آپ نکلے ہو تو نارووال سے آپ کی بڑی بہن آ گئی تھی. یہ بڑی بہن ہمیشہ نارووال سے کیوں آتی ہے گیٹ صاحب؟ جنید پلیز ریمبر، امریکہ ہوئے، انگلینڈ ہوئے، سری لنکا ہوئے، ساؤتھ افریقہ ہوئے، وڈی پہن تے وڈی پھوپھو نارووال تو یادی. اس والے کہتا گڈی آئی نارووال دی بابے دی کلی بھی جا کے بال دی. اچھا سر، میں آپ سے یہ ماڈرن ایگریکلچر کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا. یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ آپ کی فصلوں پہ بھی امریکی سنڈی حملہ آور ہوگی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تیرا انٹرسٹ کی ہے تو سنڈی نہ گلاں کر دیا ہوں. سر کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کا پیسٹیسائیڈ کا بہت بڑا بزنس ہے. پیسٹیسائیڈ مین یہ جو کیڑے مار ادویات ہیں. یعنی خانہ جنگی کر رہے ہیں. تو بات کر رہا تھا میں ایگریکلچر. جی. جو ایگریکلچر کی فیلڈ میں آیا
इसके लिए ये जहन में होता है कि पूरी दुनिया का जो लोग है उसको खाने का जरूरत है। ये जो खाने पीने का चीजें हैं ये एग्रीकल्चर से जो हासिल किया जाता है वो उसको लो कास्ट होना चाहिए जी। तो उसके लिए मैंने इसमें जंप किया। हाँ, ये आपने हाल ही में आपने मुतालबा किया है पूरी दुनिया से कि अगर आप माहौलियाती आलूदगी कम करना चाहते हैं, पोल्यूशन कम करना चाहते हैं, दुनिया को तबाही से बचाना चाहते हैं, तो हमें ये जो नेचुरल गोश्त है जो हम जानवरों से हासिल करते हैं इसको तर्क करके लेबोरेटरीज में बनने वाला मसनूई गोश्त इस्तेमाल करना होगा। जी। ये मामला है, कैसे आपने ये कह दिया? देखो, जितना भी घास खाने वाला जानवर होता है जी। उनसे मीथेन गैस पैदा होता है और वो माहौल की आलूदगी के लिए वो बड़ा खतरनाक है। अच्छा। बिल गेट्स साहब, अगर आप इसी तरह कुदरत के साथ छेड़खानी करेंगे तो उसके नताइज तो बड़े खौफनाक निकलेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कोरोना ने पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचा दिया। तो कुदरत के साथ छेड़खानी की थी ना आपने। देखो, कुदरत के साथ छेड़खानी नहीं है, मगर कुदरत ने आपको अकल दिया है, शाऊर दिया है। कुदरत ने आपको ये तौफीक दिया है, आप रिसर्च करो, आप मुख्तलिफ चीजें देखो, आपके लिए जो नुकसानदेह चीज है उसको खत्म करो, जो आपके लिए फायदेमंद है उस तरफ को जाओ। देखो, बात ये है कि ये जो मीथेन गैस है ये माहौल को सख्त खतरनाक कर रहा है। बिल गेट्स साहब, आप ये देखें कि पूरा इकोसिस्टम हिल के रह जाएगा इससे। यार, आपने खाना तो गोश्त है, मसनूई गोश्त खा लोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ की तकलीफ है? कौन बेचेगा मसनूई गोश्त? तुसी हर गरीब आदमी का कारोबार बंद कर रहे हो। या तुमको तो सबसे पहले कहना चाहिए कि मसनूई गोश्त खाओ। मैं तुम्हारी डंगरां दे बचान दी ते गल कर रहा हूं। ये अपने शहर का सबसे बड़ा कसाब है, रोजाना टनों के हिसाब से छोटा और बड़ा गोश्त बेचता है। बेच दे या खांदा है? बेचने हैं जी। ओ मेरा भाई, मेरा बात सुनो, ये तुम्हारा फायदे के लिए बात करता है। मसनूई गोश्त की तरफ जाओ। की मतलब है ਤੁਹਾਡਾ मशीन ते छुरी फेर दिए? मैं तेन चुक के मशीन च दे देना है। उस मुसीबत में तू मेरे को चुक्या नहीं जाना। ये कोई गुस्सा मैनू जुल्फी ते चढ़िया होवे ओनू मैं कर बैठा हूं। ओ भाई, आप लोगों के फायदे का बात कर रहा हूं। आपको वही टेस्ट आएगा, वही फायदा होगा, हेल्थ के लिए भी वही बड़ा फायदेमंद होगा। मसनूई गोश्त की तरफ आओ। लो दसो किस तरह मसनूई गोश्त की तरफ आइए? वो किस तरह आके गाल सानू कहेगा पुठ दा गोश्त दियो, दस्सी दा गोश्त दियो, दुमची दा गोश्त दियो। या जेड़ा मर्जी होवे तू ते सारा खा जाने, तेनू की तकलीफ है? नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक चाचा जी है। ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਫੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ। नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब पावे ऐसी खाने होंगे तो की कहोगे कि पावे ऐसी अपने वड के खा लेवी। स्टूपिड मैन, ये जो पावे होंगे ने ये 15 मिनट के बाद खत्म हो जाते हैं। और ये जो सेहत का मसला है, हेल्थ का मसला है, ये सारी जिंदगी के लिए होता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। और नहीं बाऊ जी, मसनूई गोश्त का की फायदा? जो ताजे गोश्त चो मिख झाड़न दा मजा ना वो मसनूई च नहीं जे। तेनू मिख झाड़न दा मजा नहीं आंदा, तेनू मिख च वड़न दा मजा आंदा। यार दो और तू टकरा मार मार के मिख बाहर कट के ते थोड़ी देर हड्डी च सौ भी लेना। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਮਿਰਚ ਚੋ ਕੈਨ ਕਾਢਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਨਕਾ के टटोल पैंदा। इतना तुम लोगों को मिखों का और पावों का शौक है। आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू होने दो, ये सारी प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए। ऐ ना होवे मसनूई पावे भुनन लगी तो सारे मोमबत्ती तरह पिघल के चूल्हे 'ਚ जा पैन। हर चीज इनू अपने वर्गी याद है, मोमबत्ती पावा। छोड़ दो इस बात को, इनू भुनन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पकाओ ते खाओ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਸਨੂਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਜੀ ਫਿਫਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? अपना काट लवी थोड़ा अंदर सटा के तेरे। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2-4 ਬੱਕਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਟੰਗੇ ਹੋਣ। बोलो हाँ जी, आप अपने 2 बच्चे टांग लेना बाहर गया। सही कह रहे हैं, 9 बच्चे ने विचों 2 टंग भी लेंगा तो वो केड़ा घर एटम बम बना देने का। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਟੰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੰਗੇ ਹੀ ਨੇ। बात समझने का कोशिश करो। मैं आपको याद कराता हूँ, जब शुरू शुरू में ये फार्मी मुर्गा आया था तो उस वक्त भी लोगों ने बहुत बातें बनाया था। अब आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हो, सेहत भी ठीक है आप लोगों की और आपका काम भी चल रहा है तो वो मुर्गा ही ना नेचुरली ग्रो करता है। ओ यार, मेरा गल सुनो, ये जेड़ा मसनूई गोश्त होगा
ये भी तुम लोग देखना बड़ा अच्छा लगेगा जे तुहानू मजा ना आए तो पैसे वापस ये तुहाडे डंडा च भी फसेगा ये तुसी गली दी नुक्कड़ ते खलो के तीलियां भी मारोगे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕਾਈ ਨੇ ਪਰ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੁੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਰੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਨੂਈ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ और सर मसनूई गोश्त की खाल कहां से उतारेंगे? खल्ला तुसी एक दूसरे दियां जो ला लेंगे इतना यहाँ ना इंसाफी होता है इतना चालाक और तेज लोग हैं एक दूसरे का खाल उठाता है ये आपका भाभी इधर शॉपिंग करने के लिए गया था अनारकली नवी अनारकली गई सके पुरानी नवी होनी मैं केड़ी पुरानी वेखी है कोई भी हो उधर लहंगा खरीदने के लिए गई है ओ बिल लहंगा इतना महंगा इतना नहीं वो के लहंगा 2,500 नहीं जी 5,000 लेना थे ले ले कहते नहीं 28,000 का लेना इससे कट नहीं होएगा तो कहती ओके फिर मैं जा रही हूँ जान लगी तो कहने लिया 5 कार्ड यानी 5,000 का चीज 28,000 का बता रहा है यही इधर लोग सारा चीखे मार रहे हैं महंगाई हो गया ये लूटने वाला जो बैठा हुआ है एक दूसरे का खाल खींचने वाला इनको पता चलना चाहिए इस तरह नहीं करना चाहिए वो काम करना चाहिए जो जिससे एक दूसरे को फायदा पहुंचे दैट्स वाई मैंने मसनूई गोश्त का कहा है कि ये खुदा के लिए ये मसनूई गोश्त ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो फिर वही गल हर जुमेरात ਨੂੰ ਖਾਲਾ ਹਾਜਰਾ ਸਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ अपनी वड के दे दमी तू केड़ा टाई लानी हुंदी है गोश्त का कारोबार करेगा या खुदकुशी करेगा सारा कुछ तो बिकवा दिया आपने उसका फजूल रट्टा डाल रहा है बिल साहब फर्क तो पड़ेगा हमारे यहाँ आम तौर पे माएँ बाप के लिए अलग 2-3 खास बोटियां निकाल के रखती हैं तो जब गोश्त एक जैसा होगा तो फिर खास कौन सा आम कौन सा जो मर्जी हो जाए टेढ़े कंप्रोमाइज नहीं कर यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा 2050 तक जो है जी। दुनिया भर में औसतन जो किराए है ना उनमें 50% कमी वाक़ हो जाएगी जब 50% कमी वाक़ हो जाएगी तो लामाअल्लाह मुसाफिरों की तादाद कहीं से कहीं चली जाएगी यार जुनैद ये जो फजाई सफर है मुझे ऐसे महसूस होता है कि ये अब सस्ता होता जा रहा है अच्छा जी सूस क्या होता जा रहा है तुम अखबार नहीं पढ़ते इश्तिहार नहीं पढ़ते सस्ता हो चुका है अब मुझे एक दोस्त ने बताया है कि भाई जी ये कराची की टिकट बड़ी सस्ती हो गई है रेल गड्डी की तो जहाज की इको जी हो गई है तकरीबन एक जितना हाँ ऑलमोस्ट एक जितनी हो गई है यार अभी मैं अगले रोज देख रहा था कि एक निजी फिजाई कंपनी ने कराची तक का वो टिकट जो कुछ अर्सा पहले तक 17-18 हज़ार रुपए में आता था वो अब सिर्फ 7,500 में कर दिया सिर्फ 7,500 हाँ पूरी दुनिया में और वो सस्ता हो ट्रेन रहा का है जो टिकट है वो 6,500 का मिलता है जी तो 1,000 रुपया जे ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਜ ਜਾਓ ਛਿਕ 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 ये रिटर्न टिकट है बाबू जी नहीं रिटर्न टिकट नहीं वन वे टिकट एक मिनट यार लिखाने वाला है नहीं आया टीटी है टिकट चेक करावा कहाँ 12 घंटे का सफर का या 2-1.5 घंटे का सफर अच्छा वैसे एक बात है अक्सर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इसकी जो बड़ी वजह है वो कोविड है अच्छा। उसकी वजह से फिजाई जो किराए हैं कम यही हो समझ रहे रहे हैं। लोग हाँ उसकी एक वजह यकीनन है पूरी दुनिया में फिजाई किराए कम हुए हैं उसकी एक बड़ी वजह जाहिर है कोविड है लेकिन ये जो अगर आप पढ़े ना ग्लोबल एविएशन की एक रिपोर्ट में देख रहा था उसमें बताया गया कि 2050 तक जो है जी। दुनिया भर में औसतन जो किराए है ना उनमें 50% कमी वाक़ हो जाएगी जब 50% कमी वाक़ हो जाएगी तो लामाअल्लाह मुसाफिरों की तादाद कहीं से कहीं चली हाँ जाएगी जी। यानी उसी रिपोर्ट के मुताबिक एक अंदाजा ये है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिला के 1 लाख के लगभग बनती हैं 1 लाख फ्लाइट्स में 60 लाख लोग सफर करते हैं 2050 तक ये जो तादाद है फ्लाइट्स की ये 4 लाख चली जाएगी और मुसाफिरों की तादाद जो है वो 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी यौमिया बल्ले 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 नहीं अब लोगों का आहिस्ता आहिस्ता ना जी एतमाद भी बनता जा रहा है कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं लोग मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है
6-7 साल पहले जिया रक्शे थे कराची गई सी। अजीजी तुम्हें तो कोई जहाजों का किराया कम होने से बढ़ने से कोई भी फर्क नहीं है, तुम्हारे पास तो स्कूटर है। बात अच्छी, यानी मैं बहरीन में स्कूटर पे ही जाना। अगर मुझे अल्लाह ने कतर का वीजा दे दिया तो मैं स्कूटर पे ही जाऊंगा। यार तुम स्कूटर पे दही ले आते तो कुवैत नहीं जा सकते? यार बातें छोड़ो, ये बताओ कि जब फिजा में जहाजों की तादाद जो है 1 लाख से बढ़ के 4 लाख हो जाएगी तो फिजा में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, हॉर्न बजेंगे और अस्ताद जवाना यही आवाजें आएंगी ना। आहो जी, कई एयर होस्टेस से आगे तो पायलट को कहेंगी पार्षद आगो सजियत कर लिया, खब्बे हथ बड़ा राशि। पायलट अरशद कहेगा आगे वजीर आला तो प्रोटोकॉल लग गया, रास्ता बांधते। सर ये लोग लेते हैं लाफ्टर। मैं लेता हूँ सदका। नहीं सॉरी नहीं, मेरा मतलब कि मुझे बताएं आपके ये वजह क्या है आखिर? प्रोफेसर साहब, इसकी बुनियादी वजह ये है कि सियाने बंदे को पूछे इन्हों की पता बेचारे। इसकी बुनियादी वजह एक नहीं है, इसकी कई एक वजूहत। एक तो ये कि आने वाले दिनों में कई फिजाई कंपनियां, निजी फिजाई कंपनियां वो मैदान में आ जाएंगी। अच्छा। पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, जो किराए कम हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह निजी फिजाई कंपनियों का आना है। मुकाबलेबाजी शुरू हो जाएगी। फिर जहाजों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी वो कम ईंधन इस्तेमाल करके तवील जो मसाफत है वो तय कर पाएंगे। अच्छा। एक और बड़ी वजह यह भी है कि जो एयरपोर्ट पे होने वाले जो अखराजात हैं, खामखा के अखराजात हैं, वो भी उनमें बचत के मुख्तलिफ तरीके निकाल लिए गए। अच्छा, एक और जो आपने कोई पिछले 2-4 साल से देखा होगा, ये फिजाई सफर में एक बड़ा जो खर्चा होता है वो खाने पीने का होता है होगा जी। हाँ, और मुसाफिरों को अगर आप खाएं ना खाएं, आपको वो किराए में वो पैसे देने पड़ते हैं। अब कई फिजाई कंपनियां ये कर रही हैं कि 3-3, 4-4 घंटे की फ्लाइट में खाना नहीं देती। अगर आपको ज्यादा भूख लगी है तो खरीद के हाँ, आप खा लें खाना। ये भी एक तरीका है। जी कई एयर होस्टेसें तो आगे से झाड़ देती हैं, कादी रोटी तान दईए करो खा के आनी हजे। बुढ़ी कार अर्तगुल वेखण डई हुंदी है ते सानू आगे एक्सक्यूज मी। अच्छा, एक और वजह ये भी होगी कि आने वाले वक्तों में इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो तेज रफ्तारी है ना, जो टाइम लगता है ना फ्लाइट का, उसमें 20% कमी वाकई हो जाएगी। यानी अगर एक फ्लाइट 100 मिनट लेती है तो वो 80 मिनट लेगी। अच्छा, एक और वजह वो ये होगी कि प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उनकी तादाद बढ़ जाएगी। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 22,000 के लगभग है तादाद। बल्कि पिछले दिनों में देख रहा था, इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक गवाला जो है वो हेलीकॉप्टर से दूध तकसीम करता है। तो देखो ना यार, जिस तरह दूध वाले ने साइकिल ते नहीं लाया हुंदा हारन वड्डा ट्रक वाला, इतना जहाज वाले ने भी लाया है। आज दूध क्यों नहीं आया पता लगे जी, वो तो दूध दे केन पक्के चढ़ गए सी। अच्छा सर जी, फिर एयरपोर्ट भी धड़ाधड़ी बन रहे ने। एयरपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जब सफर में इतने गुना इजाफा हो जाएगा तो उन्होंने जाहिर है समंदर पे तो नहीं लैंड करना। एक वक्त तो आना है कि शदरे दा एयरपोर्ट वखरा होना है, भगवानपुरे दा वखरा होना है, इधर मॉडल टाउन दा वखरा होना है और बैरियर टाउन दा वखरा होना है। बिल्कुल। इस वक्त वतन अजीज में आपको पता है 62 एयरपोर्ट्स हैं। अच्छा। और उनमें से लेकिन जो फंक्शनल है वो 23 के लगभग है, और जो जिन पे बिल्कुल रेगुलर डेली फ्लाइट्स हैं उनकी तादाद 10 है। 10 तो जाहिर है कि इस तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा करना पड़ेगा। पूरी दुनिया इजाफा कर रही है। अब पूरी दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे हर शहर में एयरपोर्ट है। हमारे यहाँ तो अभी चलो सफर ही ना होने के बराबर है ना। हमारे यहाँ मुझे अच्छी तरह याद है, चंद साल पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक 3% लोग जो थे वो उन्होंने जिंदगी में एक या एक से ज्यादा मरतबा जहाज का सफर किया होता। और दुनिया में भी ये तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इस खत्ते में 3% थी तो उस वक्त पूरी दुनिया में जो औसत थी वो 6% थी। और उस सर्वे में एक दिलचस्प बात ये सामने आई थी कि 46% लोग जो है, यानी कमोबेश आधे लोग जो हैं, वो इन 3 मुल्कों में ये समझते हैं कि अंदरूने मुल्क सफर करने के लिए भी पासपोर्ट चाहिए होता है। यानी अगर आप लाहौर से कराची या लाहौर से कोयटा जाते हैं तो आपको पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, दिखाना पड़ेगा। देखो ना ये रहा। बहरहाल करने वाली बात यह है कि आने वाले वक्तों में आपको इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी बेतहाशा फिजाई सफर देखने को और करने को मिलेगा। जी बेशक। फिर सच्ची मुच्ची लिखा होगा यार, और कुछ तो भावे लिखे आवे भावे ना लिखे आवे, अराई ब्रादर्स जरूर लिखे आए।
कैसे ज़हन तुम्हारा काम करता है अजीज इतना यार? बस यार मैं जो मोंगरे आलू खाना ना तो मेरा ये बहुत कम करता। वेरी गुड। यार कई ममालक इस वक्त भी ऐसे हैं जहां पे ट्रेन की टिकट महंगी और जहाज की सस्ती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी हो जाना है, जी। क्योंकि ट्रेन के ऊपर लोग ना जी इंजॉय करने के लिए राइट लेफ्ट के मनाजर को ट्रेन पे बैठते हैं और वो उनकी एक अलग इंजॉयमेंट बिल्कुल होती सही है। सफर से ज्यादा वो मंजर देखने के लिए बैठते हैं। वाह जी वाह। इवन बस की टिकट बड़ी महंगी है, बहुत सारे मुल्कों में बस का सफर जो है ना जी बाई रोड वो बड़ा महंगा है, और फिर बस की सीटें जो है वो जहाजों से बेहतर हैं कई बसों में। फिर मुझे याद है यार ये अमेरिका के अंदर एक सी अमेरिका टिकट होती थी, वो इतनी सस्ती थी, आप टिकट लेते हैं उसमें 6 कूपन या 10 कूपन है या 5 कूपन है, जी। बस शर्त ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जहां आपने जाना है सेम जगह पे आप वापस आ नहीं सकते, या सेम जगह पे आप वापस जा नहीं सकते, आपने किसी नए स्टेशन पे जाना है, तो वो बड़ी सस्ती होती थी। सारा अमेरिका लोग फिर लेते थे इको टिकट थे। बड़ी बात है। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ? ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। शेर आओ करता है, दबका मारता है कि गाला करता है? नहीं कुछ भी नहीं करता, ये बेचारा चिकन डिया होता कि फंस गया मैं बड़ा बुरा, क्योंकि शेर आपको पता है बड़ा बुरा फंसा हुआ है और अपनी हरकतों से फंसा हुआ है। नाज़रीन आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल की रौनक बनने जा रहे हैं वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं जनाब अली आपको ये खुशखबरी बताता चलूं कि जिस तरह एक मोअज़्ज़ज़ आदमी कहीं जाता है जी तो साथ कोई किन्नों की पेटी या कोई केक वाला डब्बा लेके जाता है, जी, जी। इसी तरह मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ खास तौर पे तो कोई ना कोई तोहफा लेके आता ਆਹ ਨਾਲ ਚਾय ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਜੀ। गोगे बेवकूफ नहीं, कोल्ड ड्रिंक मंगाई दी है नाल। हूँ। और यार हर बारी खान पीन वाली चीज ही नहीं होती। जुनैद साहब मैं इस दफा आपके शो में जो तोहफा लेके आया हूँ वो पहले भी सारी दुनिया को पता चल चुका है। मैंने इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीन बनवाई है। आजकल आपकी वोटिंग मशीन के बड़े चर्चे हैं। जी हाँ जाहिर है एक नई चीज आई है मार्केट में और वो आपके खादम ने बनवाई है, वाह। जिससे बड़ी सहूलत हो जाएगी वोटरों को। अच्छा, इससे धांधली कम करने में भी मदद मिलेगी? जी जुनैद साहब, चूंकि पीटीआई के वोट पे हर पार्टी को एतराज है और ये लोग मानते भी नहीं। अल्लाह के फजल से ये जो मशीन है ये बैट का निशान बड़ा वाजे दिखाएगी। अच्छा, बैट का शेर का निशान भी होगा? शेर का होगा मगर जरा मध्यम होगा, क्योंकि जुनैद साहब बैट तो मशीन में असली दे देंगे ना, तो शेर चूंकि आपको पता है मशीन में दिया नहीं जा सकता, इसलिए उसकी फोटो जब मशीन में डालेंगे तो जाहिर है फोटो से आगे जब फोटो आएगी तो आपको पता है दूसरी तीसरी कॉपी जो है वो जरा धुंधली हो जाती है। और वैसे भी जब आप शेर को मशीन में देने की कोशिश करते हैं वो हथी पड़ जाता है। नहीं जी नहीं, हथी नहीं पड़ता, वो तो सीधा तौन पकड़ता है ना, वो तो ना पता भी नहीं जे पूछता, और जिथों पढ़ता है बंदा ना पता दसन जोगा भी नहीं रहता। सर जी शेर आओ करता है, दबका मारता है कि गाला करता है? नहीं कुछ भी नहीं करता, ये बेचारा चिकन डिया होता कि फंस गया मैं बड़ा बुरा, क्योंकि शेर आपको पता है बड़ा बुरा फंसा हुआ है और अपनी हरकतों से फंसा हुआ है। तो जुनैद साहब मैं ये समझता हूँ कि इस मशीन से एक रेवोल्यूशन आएगा और लोग ये जो अपना धांधली का और करप्शन का इल्जाम लगाते हैं हर दफा, जी और खास तौर पे पीटीआई जहां से जीतती है सारे अपोजिशन वाले जो हैं वो शुरू हो जाते हैं जी धांधली हुई है यार, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अच्छा सर, जब बांसुरी नहीं बजेगी ना तो इंतखाबात की रौनक गहमा गहमी खत्म हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। नहीं जुनैद साहब, इलेक्शन है, कोई फिल्म तो नहीं ना बांसुरी नहीं बजेगी तो रौनक नहीं रहेगी। ये तो इलेक्शन है, इसकी जो खास रौनक होती है वो इंशाल्लाह ये मशीन भी प्रोवाइड करेगी। वो क्या सर? जब वोटर वोट डालेगा तो उसको एक कूपन मिलेगा मशीन में से निकला हुआ, उस कूपन पे वो 2 कीमे वाले नान ले सकता है। अरे वाह। सर जी सिर्फ कीमे वाले नाम ते गल ते ना मुकदी, इलेक्शन तो बड़ा कुछ होंदा, रौनक होंदी है, सिर पाटे डांग सोटा फड़ लो इनू लै जाओ ओनू लै जाओ।
और यार ये तो अवाम की अपनी मौज मस्ती होती है ना, वो अवाम करती रहे। अब अवाम कहे कि जो इलेक्शन मशीन है वो बच्चे भी स्कूल छोड़ के आए, ये तो नहीं हो सकता। हम तो सिर्फ वोट डलवाने के जिम्मेदार हैं, और उसके बदले ज्यादा से ज्यादा, चलो नान आपको पता है वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है, वो आपको प्रोवाइड करेगी। जी चौधरी साहब, किसी को नान नहीं भी पसंद, उन्हें बिरयानी भी मिलेगी। ये तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ात से जाहिर होता है कि तुम नून लीग के हो। ये आप लोगों के खिलाफ ही तो मैंने मशीन बनाई है, अब आप अपनी मर्जियां पूरी करेंगे इस मशीन से। जाली वोट डालने का भी एक अपना मजा है, ऐसे करके ऐसे निशान मिटाना, वो तो फिर मशीन पे नहीं होगा। नहीं जुनैद साहब, इसी करप्शन को खत्म करने के लिए तो ये मशीन इजाद की है। अगर आप जल्दी से साफ करके निशान तो दूसरी दफा वोट डालेंगे तो मशीन आपका गुट पकड़ लेगी। अब देखे ना, आप जैसा मोअज़्ज़ज़ आदमी मशीन च गुट फसा के बैठा होवे तो कितना बुरा लगेगा। पहली गल तो यही बड़ी बुरी है कि एडा मोअज़्ज़ज़ आदमी थूक नल पे अपना निशान साफ कर दे, वो तो मशीन च गुट फसाया है। ते अगले दिन जनाब फिर शो का जिहड़ा रिस्पॉन्स होएगा वो फिर तुहाडे गुट दा ही होएगा। सो इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए हमने ये इलेक्शन में वोटिंग सिस्टम में जिद्दत दी है। वाह रे वाह। अभी तो बहरहाल ये एक वादा ही है ना, बातें ही हैं। और आपकी बातों के हवाले से कैप्टन सफदर ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी की क्या बात करते हो, उसकी बात पे तो उसके बीवी बच्चे यकीन नहीं करते। सुन नहीं सकते। माइंड ना कीजिएगा, ये सिर्फ बात उठाता है, इसको हमने सिर्फ बात उठाने के लिए रखा हुआ है। नहीं, आप सुनेंगे भी और आप मजा भी लेंगे। ये कैप्टन सफदर साहब ने अपनी हड बीती बताई है। आपने कभी कैप्टन सफदर साहब को टीवी पे फिरते हुए देखा है? जी जी। वो साफ पता लगता है कि यदि कोई गल नहीं मान रहा, बेचारा आप ही कल्ला फिर रहे। जुनैद साहब, मेरी तो अल्लाह के फजल से मेरे घर में आपकी भाभी और बच्चे इतनी मानते हैं और इतना यकीन करते हैं कि वो बाहर शॉपिंग के लिए निकलने लगे तो वो मुझसे पूछते हैं, चौधरी साहब बाहर मौसम कैसा है? मैं कह दिया कि मींह वसेगा तो छतरी का रख जाते, मैं कह दिया आज मींह नहीं वसेगा तो छतरी नाल लेके जाते। ये क्या बात है, ये उलट करते? जुनैद साहब, महकमा मौसमियात जो कहे उससे उलट करना होता है। ये अब हमारे लोगों को आदत पड़ गई हुई है ना। अच्छा, मुझे भाभी से याद आया, सुने भाभी ने एक फैशन ब्रांड मुतारफ करवाया है कपड़ों का। देखें, वो उसके जहन में सोच मेरी ड्रेसिंग देख के आई। आपकी भाभी ने कहा कि चौधरी साहब आप माशाल्लाह, अगर मैं अपना ब्रांड मुतारफ करा दूं तो मुझे मॉडलिंग के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरा घर का खर्चा बचेगा। ये मेरा बिजनेस का मॉडल आप तैयार बिल्कुल बने बनाए घर में हैं, तो प्लस साइज मॉडल। जी हाँ, चौधरी साहब है ना हो जाए घर का मॉडल लंका ढाए। यार ओ भाई श्रीलंका, आप चूंकि शक्ल वजह से लंका से आपका ताल्लुक लगता है इसलिए आपके जहन में आया है, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि फवाद चौधरी जिस तरह एज साइंटिस्ट अपना नाम बना रहा है, इस तरह एज मॉडल भी अपना नाम बना रहा है। अरे वाह। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अदीब साहब ने भी और नसरुल्लाह भट्ट साहब ने भी मुझे खुद सुनाया हुआ है कि फाइट के दौरान चूंकि वो मिस्टर एशिया थे तो उन्होंने कसौन मार के अदीब साहब के सच्ची मुच्ची अगले 2 दांत तोड़ दिए। अच्छा जी, आपको जो मैं कभी कभी फिल्मी लोगों की चटपटी बातें सुनाता हूं, उसमें आज मैं आपको ये बताने लगा हूं कि हमारे यहाँ, बल्कि सारी दुनिया में ऐसा है, जहां जहां फिल्म इंडस्ट्री है जी, कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन प्लेयर जिनको हम खिलाड़ी कहते हैं, जी हाँ जी, बहुत नामवर जो हुए और उनको बाद में फिल्म में लिया गया। उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनको फिर फिल्म में कास्ट किया गया। वो मैं आज आपके साथ जरा डिस्कस करना चाहता हूं। उसमें सबसे पहले तो वो जो हॉलीवुड के हैं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जी, पता नहीं क्या नाम है उस भाई, जानता हूं मैं, कैलिफोर्निया का है, जानता हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, कैलिफोर्निया का। ताड़े ते हमसाए रहे फिर उन्हें अखीर मकान भेजता होंगे, यार इन्हें ते इथों जाना नहीं, मैं ही जावा। तो वो अपना मिस्टर वर्ल्ड था। हाँ जी, हाँ जी, बॉडी बिल्डर था बहुत बड़ा, फिर उसको फिल्म में लिया गया, फिर उसका बड़ा नाम हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। इसी तरह इंडिया के अंदर भी एक दारा
दारा सिंह थे, उन्होंने फिल्म में काम किया और फिर वो उन्होंने बेतहाशा काम किया। आड़े के पहलवान। अब पहलवान थे वो, स्पोर्ट्समैन थे और उन्होंने बड़ा अच्छा फिर काम किया। जी। ये दारा सिंह जो हैं ये बड़े प्रोफेशनल रेसलर हुए हैं। जी। 1947 में इन्होंने सिंगापुर से रेसलिंग की ट्रेनिंग हासिल की थी अच्छा। और पूरी दुनिया से बड़े बड़े मुकाबले जीते थे। और दारा सिंह ने रुस्तमे हिंद जो है ना जी, उसकी चैंपियनशिप भी जीती हुई। अच्छा, वो और भी होंगे काफी, उनके हॉलीवुड में भी होंगे, मगर मैं अपनी इंडस्ट्री के चंद लोग आपको बताना चाहता हूं। जी, जी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे मिस्टर एशिया एक हुए हैं, अल्लाह बख्शे, नसरुल्लाह भट्ट साहब। क्या कहें। और बहुत तगड़े वो मिस्टर एशिया हुए। उन्होंने अच्छा। मुझे खुद बताया कि मिस्टर एशिया जब मुकाबला होता है तो वो जो मिस्टर एशिया की तैयारी के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है हाँ जी। वो भी सारी वहां पे नोट करानी पड़ती है। वो फॉर्म फिल करते हैं तो कहते हैं मैं जितने वेट के बेंच प्रेस लगाता रहा हूं आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं किसी ने तोड़ा। अरे वाह। हाँ, वो नसरुल्लाह भट्ट साहब को पहली दफा यहाँ पाकिस्तान में असलम डार साहब ने अपनी फिल्म दारा, जो कह लें कि टार्जन पे बनाई गई थी। जी, जी। टार्जन एक डाइजेस्ट होता था अपना, शिटोरी बच्चों हाँ पे जी, पढ़ने वाली, हाँ और जी। बड़ी हमारे बचपन में पॉपुलर होती थी। जी बिल्कुल। उस पे उन्होंने फिल्म बनाई थी और टार्जन का पार्ट उन्होंने नसरुल्लाह भट्ट साहब को दिया था। और रानी बेगम उनके साथ हीरोइन थी। हाँ जी, रानी बेगम उनके साथ हीरोइन थी और अदीब साहब साथ विलन थे। अच्छा। बल्कि ये अदीब साहब ने भी और नसरुल्लाह भट्ट साहब ने भी मुझे खुद सुनाया हुआ है कि फाइट के दौरान चूंकि वो मिस्टर एशिया थे जी। तो उन्होंने कसौन मार के अदीब साहब के सच्ची मुच्ची अगले 2 दांत तोड़ दिए। फिर लोगों ने समझाया कि भाई जी हाथ थोड़ा रखना है, ये झूठी मूठी दा काम में ये मुक्का हवाई च लंगाई दे ते नाल उंज करी दे ठिशुन। उसके बाद उन्होंने फिर आखिरी चट्टान में भी हीरो आए, मिस्टर 303 में भी हीरो आए, सखी लुटेरा में भी हीरो आए जी। और आजादी फिल्म में भी हीरो आए। इन 5 फिल्मों के साथ रानी बेगम ही हीरोइन थी। अच्छा। उसके बाद फिर नसरुल्लाह भट्ट साहब बेशुमार फिल्मों में विलन आए। जी। विलन पोर्शन में तो उन्होंने बहुत काम किया। सही। अच्छा, इसी दारा फिल्म के अंदर जो नसरुल्लाह भट्ट साहब हैं उनके साथ और भी बहुत सारे गुजरांवाला के पहलवान नजर आए हैं। अच्छा। एक ककी पहलवान होते थे, क्या बात है, बहुत कमाल। सारे ही भाई बड़े तगड़े पहलवान हुए हैं। नीति और दूसरे तीसरे उनके, उन्होंने बाहर से बड़े गोल्ड मेडल और ये वो हासिल किए और माशाल्लाह सारे भाई जो थे वो बड़े पहलवान थे। वो ककी पहलवान भी उस फिल्म में नजर आए हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे जो आए भाई साहब, हाय 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 हाय, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार क्रिकेट के हुए हैं, मोहसिन खान साहब। सारी दुनिया उनको जानती है। सही हीरो आदमी थे, ग्राउंड में भी हीरो लगते थे, फिर फिल्म में भी हीरो आए। 14-15 फिल्में उन्होंने की हैं, मगर उन्होंने फिल्मी कैरियर का आगाज अपना 89 में बॉलीवुड की फिल्म थी बंटवारा, जिससे किया था, जिसमें धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, अमृता सिंह साथ उनके थे। फिर 1991 में संजय दत्त के साथ फिल्म फतह की, फिर रीना राय के साथ गुनाहगार की, फिर रीना राय के साथ उनकी शादी भी हो गई थी। हाँ जी, काफी सारी फिल्में की। पाकिस्तान में आके फिर बेशुमार फिल्में की उन्होंने। शमी मारा की हाथी मेरा साथी, बेटा, ये वो बड़ी सुपरहिट और कामयाब फिल्म स्टार थे। सैयद नूर साहब की फिल्म घूंघट भी की, काफी सारी फिल्में की हैं। अच्छा, एक और इंटरनेशनल पहलवान हुए हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत, हाय हाय हाय, पोलू खानदान के नासिर पोलू। क्या बात है, क्या बात है, बड़े खूबसूरत जवान और स्मार्ट पहलवान हुए हैं जी। माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। आमीन। प्रोफेशन तो उनका पहलवानी था जी। और इंटरनेशनल पहलवान हुए हैं वो, बल्कि फ्री स्टाइल के मेरा ख्याल है पहले पाकिस्तानी पहलवान थे। उन्होंने भी एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम चट्टान था, उसमें वो हीरो आए थे। अच्छा। बहरहाल ये नासिर पोलू साहब जो हैं, इनकी फिल्म वो इतनी चली नहीं थी, तो वैसे भी सियाने आदमी थे, पहलवान फैमिली के बंदे थे। वो पहली फिल्म तो ही समझ गए कि मैनू घर जाना चाहिए, मैं गलत काम फाड़ लिया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की हिकमत की बात। ये चलते हुए कदम, ना अगले पाँव को कोई गरूर, ना पिछले की कोई तौहीन, क्योंकि दोनों को पता है कि पल भर में ये पोजीशन बदल जाएगी। यही जिंदगी है। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह।